morning, student. This is our mathematics class, and we are studying our first chapter, integers. Today we have to see the properties of multiplication of integers. Yesterday we have seen multiplication of integers. आज हम देखेंगे properties of multiplication of integers. So first property is closure property. It says that the product of two integers is always an integer. That is, integers are closed under multiplication. Property says that the product of two integers. Product means result of multiplication of two integers. प्रोडक्ट मतलब दो इंटीजर्स के मल्टीप्लिकेशन का जो रिजल्ट आता है उसे हम प्रोडक्ट कहते हैं. Property says that when we multiply any two integers, then the product of that two integers is always an integer. Means अगर हम किसी भी दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो उनका जो प्रोडक्ट आता है, मल्टीप्लिकेशन का जो रिजल्ट है उसे हम प्रोडक्ट कहते हैं. तो दो इंटीजर्स के मल्टीप्लिकेशन का जो प्रोडक्ट आता है वो ऑलवेज इंटीजर ही होता है. अगर हम किसी भी दो इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका जो प्रोडक्ट आता है वो भी इंटीजर ही होता है. फॉर एग्जाम्पल सी द मल्टीप्लिकेशन ऑफ दिस टू इंटीजर्स. 9 multiplied by 8. These two are integers. Now then the product of these two integers is also an integer. See, 9 8s are 72. So this 72 is also an integer. देखिए ये 9 भी इंटीजर है, ये 8 भी इंटीजर्स है. हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो उनका प्रोडक्ट कितना आता है, 9 8 जा 72. तो ये 72 भी इंटीजर ही है. मतलब अगर किसी भी दो इंटीजर्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे उसका जो प्रोडक्ट आएगा वो भी इंटीजर ही आता है. सी नेक्स्ट एग्जाम्पल, -7 मल्टीप्लाई बाय 5. नाउ सी multiplication of these both are integers. Now what will we do? Multiply the absolute value of these two integers. 7 is -7's absolute value is 7 and it's 5. 7 5s are 35. Now both the integers have different sign. Then which sign will we do? We give minus sign. अगर हम इस दो इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें कितना में आंसर मिलता है, -35. अब ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है और उनका जो प्रोडक्ट आया वो भी इंटीजर ही है. क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहती है, अगर हम किसी भी दो इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो उनका जो प्रोडक्ट आता है वो भी इंटीजर ही होता है. नाउ वी विल सी नेक्स्ट प्रॉपर्टी, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. नेक्स्ट प्रॉपर्टी, commutative property. This property says that two integers can be multiplied in any order. That is, multiplication is commutative for integers. Means this property says that two integers, we can multiply that two integers in any order. It means that multiplication is कॉम्यूटेटिव फॉर इंटीजर्स. ये कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है, हम दो इंटीजर्स को किसी भी ऑर्डर में मल्टीप्लाई कर सकते हैं. उसका मीनिंग क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन इंटीजर्स के लिए कॉम्यूटेटिव होता है. सी इफ a and b are any two integers, then a multiplied by b is equal to b multiplied by a. Means these two integers, if we change the order of these two integers in this form, b multiplied by a, then at both the time we get same product. Means हम अगर देखिए a और b ये दोनों इंटीजर्स है तो हम उन दो इंटीजर्स की ऑर्डर
चेंज कर सकते हैं। मतलब हम अगर a मल्टीप्लाई बाय b लिखते हैं तो हम उसे उल्टा भी करके लिख सकते हैं मल्टीप्लिकेशन में। मतलब हम उसकी a मल्टीप्लाई b को b मल्टीप्लाई बाय a ऐसा भी लिख सकते हैं, उसकी ऑर्डर चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल सी multiplication of these two integers. What we do? We multiply absolute value of these two integers, which is 8 multiplied by 7. 8 7s are 56, and we give the minus sign because both the numbers have different sign. So product of these two integers is minus 56. Now if we change the order of these two integers, minus 8 multiplied by 7, what will we get? We multiply absolute value, 8 7s are 56. We give minus sign because two integers have different sign. So at both the times when we change the order of the numbers, we get same result. So in multiplication we can multiply two integers in any order. देखिए हम एग्जाम्पल में इस इंटीजर्स को इस इंटीजर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। 7 मल्टीप्लाई बाय -8 हमें मिलता है -56। अब हम उन इंटीजर्स की ऑर्डर चेंज करते हैं, मतलब हम उन्हें उल्टा करके लिखते हैं। तो -8 मल्टीप्लाई बाय 7 इज इक्वल टू -56। मगर दोनों भी टाइम हमें सेम आंसर मिलता है। इसका मीन्स क्या होता है कि हम मल्टीप्लिकेशन को किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हैं। नाउ सी वन अनदर एग्जाम्पल, -11 multiply by -9, we will get, we multiply absolute value, 11 9s are 99, we give plus sign because two integers have same sign, so we get 99 as result. अब हम इन दो इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करते हैं। 11 मल्टीप्लाई बाय 9 हमें क्या मिलता है, उसका रिजल्ट 99। अब हम इन नाउ we change the order of these integers. We take this -9 as a first and multiply by -11. So what will we get? We multiply the absolute value, 11 9s are 99, and we give the both the numbers have same sign, so we give positive sign, so we get 99. अब हम इस नंबर की ऑर्डर चेंज करके लिखते हैं -9 मल्टीप्लाई बाय -11, तो अब हमें क्या आंसर मिलता है 99। मीन्स बोथ द टाइम्स हमें सेम आंसर मिलता है। इसका मीनिंग है हम इसे उल्टा करने के बाद भी सेम आंसर आता है। मीन्स मल्टीप्लिकेशन में हम इंटीजर्स को किसी भी ऑर्डर में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। नाउ वी विल हैव टू सी नेक्स्ट प्रॉपर्टी, associative property. Now see next property, associative property. It says that 3 or more integers can be grouped in any order to find their product. That is, multiplication is associative for integer. This property says that we can group 3 or more than 3 integers in any order to find their product. Means मल्टीप्लिकेशन में अगर हमें 3 और उस 3 से ज़्यादा भी इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करना है और उसका प्रोडक्ट निकालना है, तो हम उस इंटीजर्स को किसी भी ऑर्डर में ग्रुप कर सकते हैं, किसी भी ऑर्डर में ग्रुप बना सकते हैं। For example, now see, if A, B and C are any 3 integers, then now if we have to multiply these 3 integers, now we have to multiply these 3 integers. So for multiplication of these 2 integers, we can group these 2 integers. Means first we multiply these 2 integers and after that multiply by this C, or also we can multiply it as first we can group these 2 integers and multiply these 2 integers first and after that multiply by A.
मीन्स इन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अगर हमें इस 3 इंटीजर्स का मल्टीप्लिकेशन करना है तो हम पहले इस 2 इंटीजर्स का मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं और बाद में इस थर्ड इंटीजर से उसे मल्टीप्लाई करेंगे। और हम इसे ऐसा भी कर सकते हैं, हम पहले ये लास्ट के 2 इंटीजर्स का ग्रुप बनाते हैं, उन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं और बाद में इस a से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इन मल्टीप्लिकेशन और उसके ज़्यादा से इंटीजर्स का मल्टीप्लिकेशन करना है तो हम इंटीजर्स का किसी भी ऑर्डर में ग्रुप बना सकते हैं। हम पहले इन दोनों का ग्रुप बना के बाद में इस नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं और हम इस लास्ट के 2 नंबर्स का ग्रुप बनाते हैं और बाद में a से उसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। हमें इस दोनों भी टाइम उसका आंसर सेम ही मिलता है। मतलब मल्टीप्लिकेशन में हम किसी भी ऑर्डर में मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल सी, वी हैव टू मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई बाय -6 मल्टीप्लाई बाय -9. We will make the group of this first 2 integers first and after that we multiply by this -9. So see, फर्स्ट हम क्या करते हैं, इन 2 इंटीजर्स का ग्रुप बनाते हैं और उस इंटीजर्स के ग्रुप को बाद में इस -9 से मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लिकेशन ऑफ दिस 2 इंटीजर्स इज 4 multiplied by 6 24 and we give the minus sign because both the integers have different signs, so it is -24. Now the product of these 2 integers is -24. Now we will multiply by this -9, so multiply by -9 we will get 216 and we give positive sign because both the numbers have same sign, so the result product of these 3 integers we get 216. हम पहले इस ग्रुप को सॉल्व करने के बाद हमें कितना आंसर मिलता है, -24. अब इस -24 को हम इस -9 से मल्टीप्लाई करते हैं। अब इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन हमें कितना मिलता है, 216. नाउ we make group of this second integers first and after that we multiply by 4. हम क्या करते हैं, अब ये दोनों इंटीजर्स का ग्रुप बनाते हैं और उसके बाद में इस 4 से उसे मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखिए, नाउ सी व्हाट वी हैव डन, वी हैव मेक द ग्रुप ऑफ दिस 2 इंटीजर्स एंड आफ्टर दैट वी विल मल्टीप्लाई बाय 4. क्या किया है, इस 2 इंटीजर्स का अब ग्रुप बनाया है और बाद में हम उसे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमें क्या मिलता है, देखिए 4 मल्टीप्लाई बाय 9 6 54. नाउ बोथ द नंबर्स हैव सेम साइन, सो वी गिव हियर पॉजिटिव साइंस. मीन्स नाउ आफ्टर दैट मल्टीप्लिकेशन ऑफ दिस 2 इंटीजर्स व्हाट विल वी गेट, 4 4 16 remains 1, 4 5 20 remains 1, 20 plus 1 21. Now we give both numbers have same sign. 4 has not any sign, means here is a plus sign. 54 has a plus sign, so both the numbers have same sign. So what will we give, we give here positive sign. So अब हम इस ग्रुप का मल्टीप्लिकेशन करते हैं और बाद में उससे 4 से मल्टीप्लाई करते हैं। अब इस ग्रुप का मल्टीप्लिकेशन से हमें कितना मिलता है, 54. अब इस 54 को हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें कितना मिलता है, 216. मतलब हम अगर इस इंटीजर्स को इस ग्रुप में भी लिखते हैं तभी भी हमें 216 ही मिला है, और अगर हमने ये फर्स्ट ग्रुप बनाया और बाद में इस थर्ड नंबर से मल्टीप्लाई किया तभी भी हमें सेम ही आंसर मिला. मीन्स इन मल्टीप्लिकेशन वी कैन ग्रुप एनी नंबर्स इन एनी ऑर्डर टू फाइंड देयर प्रोडक्ट. हम मल्टीप्लिकेशन में किसी भी ग्रुप बना सकते हैं
उसका प्रोडक्ट फाइंड करने के लिए। नाउ वी विल हैव टू सी नेक्स्ट प्रॉपर्टी।